Our today's topic is drift velocity. What is drift velocity? Students, जब हम किसी कंडक्टर को किसी बैटरी से अटैच करके उसे पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं और यू कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं किसी वेलोसिटी के साथ। और जो एवरेज है इन वेलोसिटीज का, दैट एवरेज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद विच दे कैन मूव इन अ कंडक्टर अंडर द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको समझने के लिए हम एक कंडक्टर कंसीडर करते हैं। लेट्स सपोज दिस इज अ कंडक्टर हैविंग सम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन and having some length. This is a conductor. As you know, electrons in a conductor are randomly moving. सभी के सभी electrons randomly move कर रहे हैं, having some initial thermal velocities at the room temperature. They are moving randomly. That's why the average of their velocity is 0 because they are randomly moving. तो हमें कोई इलेक्ट्रिक शॉक फील ही नहीं होता जब हम इस तरह के कंडक्टर को टच करते हैं। बट अगर हम इसी कंडक्टर को किसी बैटरी के साथ अटैच करके इसे पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं, दैट इज हम जो इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर रैंडमली मूव कर रहे हैं इन्हें कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर देते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उन पे एक फोर्स अप्लाई होता है, जिस फोर्स की वजह से वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं और वो जो डायरेक्शन होगी वो डिसाइड होगी पोटेंशियल डिफरेंस से। जिस तरह से यहाँ मैं एक बैटरी अटैच कर रहा हूँ, इस बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है, तो जो ये इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे हैं वो इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे, इधर अट्रैक्ट हो जाएंगे और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे, दैट इज द पर्टिकुलर डायरेक्शन। और इन सभी इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी का अगर मैं एवरेज फाइंड कर लेता हूँ, दैट एवरेज इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसे ही आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल सकते हो। ओके स्टूडेंट, दिस इज द एवरेज velocity of free electrons which are moving in a conductor under the application of electric field. Hence you can define drift velocity. It is the average velocity of free electrons. Average velocity of free electrons with which they can move in a conductor, with which they can move in a conductor. But याद रखना स्टूडेंट्स, हमने पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है। They can move in a conductor under the application of electric field. Under the application of electric field. जब तक आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करोगे तब तक वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे। दैट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके स्टूडेंट्स, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इट इज द एवरेज वेलोसिटी। याद रखना, इट इज द एवरेज वेलोसिटी। किसकी? द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद विच they can move in a conductor under the application of electric field. That is the definition of the drift velocity. Now, how we can derive the expression for the drift velocity? Expression for the drift velocity. We have considered a number of electrons having different velocities. Initial velocity. Before applying the electric field, the electrons have different velocities. Suppose they having velocity u1, u2, u3 up to un. Let u1, u2, u3 up to un are the initial velocities. The initial velocity, these are the thermal velocities. Actually students, at room temperature electrons gain some energy in the form of heat and they move using this energy. So you can say thermal velocity or initial velocity. Thermal velocities of an electrons
of n electrons in a conductor. But their direction is randomly distributed, but their direction of motion, they are moving in random directions, so their average will be 0, but their direction of motion are randomly distributed. They're having no particular direction, randomly distributed. So there is no net velocity. Okay students, no net thermal velocity before applying the electric field. Therefore average thermal velocities, or you can say average thermal velocity, U average लिख सकते हो आप, U average which is U1 plus U2 plus U3 up to UN divided by N, which is equal to 0. You can consider equation number first. This is equation number first. Okay students, now the electrons having some velocity because of applied electric field. Let us consider minus E is a charge on an electron. Now small m is the mass of electron. Now electric field, from where electric field come, that is the electric field applied. आपको एक बेसिक फार्मूला पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड E डॉट dl, तो यहाँ हम लिख सकते हैं जो V है, पोटेंशियल है V across this conductor, which is E into L. L is the length of that conductor. ओके स्टूडेंट, तो फॉर्मूला हो सकता है V इज इक्वल टू E इंटू एल और E इज इक्वल टू V बाय L. सो जब आपने पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोवाइड किया, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड. देन force on an electron. What is the formula of the force in the form of electric field? That is F is equal to Q into E. और यहाँ Q क्या है? इलेक्ट्रॉन, that is इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस E का. So you can write minus E into capital E. Now there is also another formula of the force. F is equal to mass into acceleration. Force F, which is m into A, or acceleration due to electric field, which is force by mass F by m, and F is equal to minus E into E. You can write F की वैल्यू क्या है यहाँ पर? F की वैल्यू हमारे पास है माइनस E कैपिटल E divided by. This is the acceleration which electric field will provide to the electron. This is equation number 2. Okay students, now as you know, when we provide acceleration to any object which is moving with initial velocity, there should be some final velocity. As per the formula, V is equal U plus AT. आपको ये formula +1 में पता है, V is equal to U plus AT. V is the final velocity, U is the initial velocity, A is the acceleration. Okay students, this is the formula. This is initial velocities, and you can calculate the final velocities of all electrons. Now first of all, what is T? Here we use T. This is the time when the electrons are moving before collision. We can write it as tau 1, tau 2 up to tau n be the relaxation time. Now what is the meaning of relaxation time? Actually relaxation time is the time between two electrons, between two successive collision of the electron. Okay students, यहाँ हम बात कर रहे हैं रिलैक्सेशन टाइम ऑफ n इलेक्ट्रॉन्स की. तो जब दो इलेक्ट्रॉन्स सक्सेसिव कोलिजन करेंगे, किसी भी कंडक्टर में मूव करते हो, उनके बीच में, दो कोलिजन के बीच का जो टाइम होगा उसे आप रिलैक्सेशन टाइम बोलते हो. दैट इज कॉल्ड द रिलैक्सेशन टाइम.
तो हम यहाँ टाइम को t की बजाय टाउ लिख रहे हैं बिकॉज टकराने से पहले तक वो एक्सेलरेट करेगा, उसके बाद फिर दोबारा वो एक्सेलरेट करेगा, तो टकराने तक ही ये टाइम हम कंसीडर कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ रिलैक्सेशन टाइम ले रहे हैं, यहाँ टाउ की वैल्यू ले रहे हैं। सो देयर फाइनल वेलोसिटी कैन बी इन द फॉर्म ऑफ रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम की फॉर्म में हो सकते हैं। देयर फाइनल वेलोसिटीज आर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की जो फाइनल वेलोसिटी बनेगी वो बनेगी v1 विच इज u1, दिस वन अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला u1 प्लस a, टाइम की जगह आ जाएगा टाउ 1, फर्स्ट टाउ 1। सिमिलरली यू कैन राइट v2 विच इज u2 plus a tau 2 and so on up to n number of electrons vn tau n. Okay students, now drift velocity, it is the average velocity. Students आपको average निकालना है free electrons का with which they can move in a conductor under the application of electric field. So you have to calculate average velocity. तो average किस तरह से calculate करोगे, तो हमें इसका average निकालना है। Now drift velocity is given as you can denote it by vd. कुछ बुक्स में आपको vn मिल सकता है एवरेज वेलोसिटी की फॉर्म में, तो v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू vn डिवाइडेड बाय n। ओके स्टूडेंट्स, हम इसे vd से भी नोट कर सकते हैं, v से भी नोट कर सकते थे, तो वैल्यू पुट करें u1 प्लस a टाउ 1 v1 की वैल्यू प्लस u2 प्लस a टाउ 2 प्लस एंड सो ऑन un plus a tau n divided by n. This is the value. Okay, now हम अब इसे सेपरेट कर सकते हैं। Now we can write it as v average velocity which is, देखो स्टूडेंट्स सभी में प्लस का साइन है, everything is in plus condition. You can write it as u1 प्लस u2 प्लस u3 अप टू n टाइम्स। हम इनको ऐड करके लिखा जा सकता है a टाउ 1, a टाउ 2, a टाउ 3 अप टू n टाइम, तो सबको ऐड करके अलग अलग लिखा जा सकता है। तो आप लिख सकते हो u1 प्लस u2 अप टू un प्लस a टाउ 1 प्लस a टाउ 2 अप टू a टाउ n this way, or divided by n. Now you can write it as average velocity u1 u2 up to un प्लस a कॉमन निकाला जा सकता है, यहाँ से a कॉमन निकाल लेते हैं, टाउ 1 टाउ 2 अप टू टाउ n। ओके स्टूडेंट्स, n ये दोनों तरफ हो सकता है क्योंकि बीच में प्लस का निशान आ गया, तो n यहाँ भी लगाएंगे और n यहाँ भी लगाएंगे। नाउ वी कैन कंसीडर इट एज इक्वेशन, हम इसे एक इक्वेशन कंसीडर कर सकते हैं और फर्दर वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं। यहाँ इसको इक्वेशन नंबर 3 पुट कर लेते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले रिलैक्सेशन टाइम की बात करते हैं। पहले बात करते हैं रिलैक्सेशन टाइम। यहाँ पर हम ये टाउ 1 टाउ 2 अप टू टाउ n बाय n को एवरेज रिलैक्सेशन टाइम भी लिख सकते हैं। टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस अप टू टाउ n डिवाइडेड बाय n, इसको आप पुट कर सकते हो टाउ। दिस इज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम आप इसे लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, आप इसे भी इक्वेशन कंसीडर कर सकते हो। दिस इज आल्सो इक्वेशन नंबर 4। इस इक्वेशन नंबर 4 लिख सकते हो। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, देखो ये थर्ड इक्वेशन है, इस थर्ड इक्वेशन में हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। कहाँ से? ये वैल्यू हमारे पास है, ये हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में बनाया, ये इक्वेशन नंबर सेकंड में, और ये इक्वेशन में हमने फोर्थ में बना दी। तो हम वैल्यू पुट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट
सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ में हमारे पास टाउ की वैल्यू, पुटिंग इन वैल्यू इन इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर देते हैं, इक्वेशन थर्ड। नाउ देयरफॉर Vn, that is average velocity, this is value is average which is 0, ये हमारे पास 0 है, और एक्सेलेरेशन सेकंड के अकॉर्डिंग हमारे पास माइनस ई अपॉन एम है। ये दोनों वैल्यू अगर पुट करें तो हमारे पास वैल्यू आएगी, दिस वन इज 0 प्लस ए की वैल्यू हमारे पास है माइनस ई अपॉन एम इंटू दिस इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, दिस वन दैट इज टाउ। Now the average, hence drift velocity, average velocity is minus E upon m into tau. Okay students, this is the drift velocity.